And just think of the wonderful music that he gave us. Thank you so much, ladies and gentlemen. I also too believe that, thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are all really excited about doing Khazana again at the Oberoi after the challenging times that we've gone through in the last 3 years. Unfortunately, we are a little down, I would say, because we've lost some of our dear artists who were with us, supporting us always. And that makes us a little, or even more, sad, because we would have been much better off if they were here to bless us and support us and be with us. However, on the brighter note, I would say that we are really happy to be back where we belong. Though we did 2 years of virtual Khazana, but the beauty of Khazana at the Regal Room and the environment, the ambience, the atmosphere is totally electrifying. It's different. For which I thank the Oberoi Group of Hotels, Trident, especially the Senior Vice President, Shri Bhandari. Bhandari ji, thank you so much. And we also are thankful to Ritijit Dutt and Sanju Soni. There are so many things that I can talk about, but I don't want to get into all this. Only thing I can say is that, first of all, I thank all the sponsors, especially Union Bank of India, which has supported us from the inception, from the first year. And my hats off to Union Bank for their commitment, for their support. You can very well imagine that during the pandemic,
when we were doing virtual Khazana, even at that stage, when we asked Union Bank, they said, no, we are with you. We will support you, whether you are at the Oberoi or virtual. So I cannot forget that especially because you have been so very kind to us. Thank you so much, Union Bank. Obviously, we are thankful to Oberoi for their full-hearted support. And it's not just the management, but every member of the staff. I remember in 21 years, not one staff member has given us an opportunity to complain. They have been so kind. They have been so very supportive. So thank you, Oberoi, and the entire staff of Trident. Obviously, Mr. and Mrs. Sapru, who have been the driving force. I have known them for more than 40 years now, and they have been with me in spirit and in all kinds of support and moral support and otherwise also. Thank you, Mr. and Mrs. Sapru. This year, we are dedicating Khazana to Bharat Ratna Lataji, and the reason, because I was asked by one of the media personnel, the reason for dedicating this Khazana to Lataji is, as Rohini said earlier, that we all grew up listening to Lataji. I mean, basically, I think from the time we realized that we could understand music, we always heard her voice. But the other aspect of Lataji is that Lataji, through her singing in cinema, singing ghazals in cinema, be it Madan Mohan Saab, Naushad Ji, Roshan Saab, Khayyam Saab, she sang some amazing ghazals in cinema. And when one saw this on the screen, obviously that had a lasting impact. And that's how ghazals penetrated, went across the masses, and people realized that there was a genre called ghazal. And Lataji had a big role to play in that. Her contribution was immense, and therefore we felt that we wanted to dedicate this Khazana to her. We were going to have a couple of family members of Lataji this afternoon for the press conference, but unfortunately, because of health issues, they have not come, but they will be there for the main event. We also, as we spoke earlier, that we lost our dear Bhupiji just a couple of days back. Bhupiji was with us from the first Khazana. And he was so very supportive. I still remember that I always called him Bade Bhaiya, because he was really like our elder brother, big brother, always guiding us, helping us. So we are going to miss Bhupiji for sure. We pray for his soul, and may he rest in peace, eternal peace. Rajkumar Rizviji was another gentleman who always was with us in Khazana. Whether he was singing or not, he would be there for every Khazana. And he would sit till the last artist, he would sit till the end and listen to Khazana and listen to the artist, and then he would really kind of cheer us when we would perform. So we are going to miss Rajkumarji. I would like to take this opportunity to just give you a brief on what we have done at
Parents Association Thalassemia Unit Trust, we, in the last 21 years that we have been doing Khazana here, we changed our focus in terms of treatment. We changed our focus to bone marrow transplant. And no doubt bone marrow transplant is an expensive process, expensive procedure, expensive treatment. But the only advantage of bone marrow transplant is that the child, a thalassemic child, when a child goes through bone marrow transplant, the child is cured for good and the child does not have to take any medication for thalassemia. So in the last 21 years, we have been able to do bone marrow transplant of more than 300 children. And those children are today running and normal and doing their work and growing up normally now. And for which we are thankful to Khazana for giving us this support. Obviously, we are thankful to all the other sponsors who have always supported us, which is Mr. Bhandari, who's here, if he's here. He's right there. For the support, he keeps everyone's spirits high. And thank you, Mr. Bhandari. We also would like to thank Mr. Neeraj Roy of Hangama. Hangama, through their live streaming, has taken us across the world. You will be surprised that every Khazana has fans and listeners who come all the way from South Africa, from United States, from Australia, from the Middle East to attend Khazana. And thanks to Hangama, that Hangama has taken Khazana today to every household across the world, which is a great achievement for us. Thank you, Neeraj, and entire team of Hangama. Somini Paul of Artists Aloud, thank you, Somini, for the talent hunt and your contribution to Khazana. Also, Mr. Arvind Bhandari of Minimax, who has been giving us all the hoardings and everything. And Mr. Vaibhav Patil of Ginger PR, who has been doing great service to us. Reva Udas, I shouldn't be taking her name, she's my daughter, but the entire social media presentation is done by her. Anuj Bajaj and no doubt the entire media, print and electronic media, thank you so much for all your support year after year. I mean, when I see such senior journalists like Jyoti Venkatesh and Mohammad Wajaddin sitting here, I can proudly say that we have some great support from the media. They come year after year. Thank you so much for being with us. And last but not the least, I'd like to share this with you all that from the first year of Khazana, all my colleagues, all my fellow artists has been our biggest strength. They have supported us year after year, and they have come and supported us unconditionally. They have never ever asked us. I can very well recollect, I can very well remember that every artist who comes for Khazana, they have not demanded anything. Otherwise, you can imagine that I've never seen any artist creating a fuss or making a fuss or demanding XYZ. No. They have just come here with a smiling face and they have
enjoyed, like Anup bhai always tells me, he says, Pankaj, खजाना जो है वो एक celebration है, हम तो मजे करने आते हैं. And it's so true that they all come with that spirit of celebrating Ghazal. They come here with that celebrating the entire Ghazal genre for such a fantastic cause. So I am so very thankful to all the artists who are participating in this Khazana and all the artists who have participated in the last so many years. Thank you so much. Mind you, they in fact don't even ask for their fees. I mean, Khazana couldn't be more blessed that we are not paying any money to any artist. They all come and do this as their contribution towards cancer patients and thalassemia children. So I am really, really elated that Khazana is back in its original shape, in its original form, and we are all looking forward to Khazana on the 29th and 30th. If I've forgotten anybody, please pardon me. But thank you so much for being here this afternoon, and we look forward to a great Khazana this year. Before Rohini goes on to the next person, or the next agenda on the list, I would like to invite Shri Anup Jalota, one of our very, very senior and celebrated artist, to come and share his views about Khazana, because he's been with us. Like Mr. Bhandari said, that Anup bhai has been with me since we started dreaming of Khazana. So I would like him to say a couple of words. मुझे यही कहना है कि खजाना ऑनलाइन हो रहा था, 2 साल बाद हम लोग फिर मिल रहे हैं, तो ऑनलाइन में भी, वर्चुअल में भी उतने लोग सुन रहे थे जितने पहले सुन रहे थे, कोई कमी नहीं थी. हाँ, जो दारू वारू मिलती है वो नहीं हो पाया दोस्त, वो नहीं हुआ, बाकी तो सब वैसे ही था. खजाना की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप जानते हैं कि दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं, यहाँ 2 दिन रहते हैं, यहाँ यहीं कमरे लेते हैं, यहीं रहते हैं, 2 दिन खजाना का लुत्फ उठाते हैं और वापस जाते हैं. और एक बात और बताऊं कि इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है कि पिछले खजाना में लोग सुन रहे थे, वो शेर सुना रहा है, वो रूबाई सुना रहा है, वो कथा सुना रहा है, वो गजल सुना रहा है, वो मज़ा ले रहे थे. तो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी हाइट पे कि एक शेर भी आ गया था सुनने. एक शेर भी अपनी वाइफ को लेके आ गया था और पीछे बैठा सुन रहा था बड़े मजे से. तो खूब जमा हुआ था प्रोग्राम. तो शेर ने अपनी वाइफ से पूछा, एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बात बताना कि शादी से पहले तुम्हारा कोई चक्कर उक्कर तो नहीं था. तो वो बोली, अब आपने ऐसी बात पूछ ली है तो इस पे मुझे एक शेर याद आ गया. अभी कौन सा शेर याद आ गया? आपको पता है कि खजाना अनाउंस होने से पहले ही सोल्ड आउट हो जाता है. मैं 2-4 लोगों को चुपके से ले आता हूँ अपने साथ, लेकिन इस बार इतना बुरा हाल है कि लोगों ने मुझे पूछा कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है. मैंने कहा है अगले साल के लिए. इस साल तो बुरा हाल है, बहुत भर चुका है. ये खजाना हम लोग बड़े ही भारी दिल से कर रहे हैं. एक तो भूपी जी चले गए, अभी कल की ही बात है, परसों की ही बात है. लता जी गई,
बहुत से कलाकार गए और उनके जाने के बाद भी उनका संगीत हमारे साथ तो है ही। हमें म्यूजिशियन के संगीत के सहारे ही रहना पड़ता है, वो थोड़ी रहता है अपनी जिंदगी से ज़्यादा। लेकिन जैसा कहा जाता है कि जो म्यूज़िक है वो म्यूजिशियन से ज़्यादा ग्रेट होता है। जो वो क्रिएट करते हैं म्यूजिशियंस, वही रह जाता है, म्यूजिशियन तो चला जाता है। हम लोग भूपी जी को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ परफॉर्म नहीं करते थे, हम लोग को गाइड भी करते थे। हम लोग जब बैठते थे उनके साथ तो बताते थे कि इसमें ऐसा होना चाहिए, कुछ नए कलाकार रहने चाहिए, ये होना चाहिए। तो यही हो ही रहा है। हम लोग कॉन्टेस्ट कराते हैं, दो सिंगर्स हम प्रेजेंट करते हैं हर साल, तो उनको हम अपने साथ ही समझते हैं, बिल्कुल दूर नहीं गए हमसे। जैसा कि पंकज जी ने बताया कि लता जी ने कितनी खूबसूरत गज़लों को मशहूर किया है, उसमें बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर्स शामिल, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो मदन मोहन जी का रहा। मदन मोहन जी के जो कंपोजिशन में उन्होंने गाया वो तो कमाल ही कर दिया। तो हम लोग एक कुछ ऐसा गाना भी बना रहे हैं कि सब लोग मेडली बना रहे हैं, जिसमें लता जी के एक एक दो लाइन सब आर्टिस्ट गाएंगे। पंकज जी के लिए इतना कहूंगा कि अपने पूरे भाषण में उन्होंने नायाब का नाम नहीं लिया। भाई ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है। नायाब है ना, मैं मिला था नायाब को आते ही। और नायाब का नाम ये जानबूझ के नहीं लेते हैं, क्योंकि नायाब ने इनको कहा हुआ है कि मेरा नाम मत लिया करिए। लेकिन मैं तो लूंगा, क्योंकि नायाब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है खजाना को यहां तक खड़ा करने में। ठीक है, इसकी शुरुआत जब हुई थी तब मैं, तलत, पंकज भाई, हम तीनों मिलके इसमें काम कर रहे थे। लेकिन एक नई जनरेशन को आना ही पड़ता है और आना भी चाहिए, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सब काम होता है तो हमको समझ में नहीं आता। हमारा फ़ोन भी कहीं अटक जाता है तो हमको बेटे से ही पूछना पड़ता है, बेटा इसको ठीक करो। तो ये जो जनरेशन है, अब ये इनका वक्त है, खजाना को आगे बढ़ाने के लिए इनकी ज़रूरत है। ये दोनों बेटियां पंकज जी की जो हैं वो हीरा मोती हैं। दोनों इसको खूब बढ़ाएं आगे, और हम लोग हमेशा साथ देते रहेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि हर साल नए टैलेंट्स इसमें आए, ये हमारी कोशिश रहेगी कि नए टैलेंट्स आएंगे तो ही ये आगे चमकने वाला है। तो मैं नायाब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने अपना स्पेशल टाइम इसमें दिया है और बहुत प्यार से इसमें काम कर रही है। तो इंतज़ार है 29 और 30 का। मैं आपको दोनों दिन मिलने वाला हूं और खूब मज़ा करेंगे। जिनको शिकायत रही, दारू वगैरह नहीं मिली, पूरी कर लीजिएगा इस साल। नमस्कार। Thank you so much, Anup ji. Thank you so much, Pankaj ji. Rekha ji has just walked in, and there's been a, yeah. Thank you so much, Rekha ji, for walking in. Thank you so much for being with us. Union Bank of India, Mr. M. Venkatesh, GM Corporate Communications, Union Bank of India. Sir, may I please request you to come up on the stage and say a few words. Also, like to thank Ashok Nair, sir, from Union Bank of India for his continued support. Sir, all yours. सबकी बिगड़ी को बनाने निकले, सबकी बिगड़ी को बनाने निकले।
for those couple of minutes that we could actually think of the greatness that used to. अरे फिर आके नहीं हम फिर नहीं अरे लो हाँ लो ना आराम से इस तरफ आ जाए सर इनको भी चमकना है पार्टी वाले अरे पीछे आ जा दादा थोड़ा थोड़ा Everyone look at this camera. हो गया? अरे पार्टी है नहीं पार्टी है ये पार्टी है हो गया हो गया अरे रुक जाओ भाई ये ले अरे क्या कर रहे हो यार दादा यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सेलिब्रेट कर रहे हैं सर कैसे देखते हैं आज के इस ओकेशन को क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर हमारे सामने जी आप प्रेजेंट हैं। देखिए 20 इयर्स हुए हैं 21वां साल बहुत बड़ी बात है और दूसरी बात यह है कि एक 2 साल 3 साल के गैप के बाद जो हो रहा है तो उससे उत्साह जो है वो बहुत ज़्यादा है पहले से और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का खजाना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आर्टिस्ट भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं 2 आर्टिस्ट जो हमने चुने हैं वो भी कमाल हैं उनको भी आप सुनिएगा। तो बस तैयारी है इस साल खजाना में धमाका करने की। सर खजाने की बात की जाए तो हम हमेशा देख रहे हैं कि इतने साल से हो रहा है बट पंकज जी और आप भी मतलब कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको। कोई यंगर जनरेशन इस टाइम आएंगे गज़ल गाने के लिए। हाँ बिल्कुल वही तो हमने कर रहे हैं। हमने चुने भी हैं नए नए कलाकार और वैसे भी हमारे पास यंग सिंगर्स पहले से ही हैं वो भी गाएंगे। तो कोशिश तो यही है ना कि नए नए आए तभी तो खजाना आगे चलेगा। अब देखिए पुराने जो हैं वो एक एक करके जा रहे हैं। रिजवी साहब चले गए, भूपेंद्र जी चले गए,
ये सब हमारे यहाँ के अभिन्न हिस्सा थे। तो पुरानों को जाना है और नए को आना है। सर भूपेंद्र जी की बात की जाए तो मतलब हाल ही में उनका डेथ हुई है सर, तो कैसे मतलब कि 2 दिन के बाद ही आप लोगों ने ये अनाउंस कर दिया? देखिए, भूपेंद्र जी जो हैं वो हमारे देश के बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर भी रहे, बहुत बड़े गिटार प्लेयर रहे और गज़ल गायक रहे। तो उनके जाने से हम सबको बहुत दुख है और हम उनको ट्रिब्यूट भी देंगे। उनकी कुछ गज़लें जो हैं कुछ लोग गाएंगे भी, तो इस तरह से हम उनको इज्जत देंगे। सर, शुक्रिया। एक मेरा सवाल है, हाँ जी। आप आज के यूथ को कुछ पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से? यूथ को पैगाम यही है कि ऐसा म्यूज़िक सुनिए जो बहुत साल तक आपके साथ रहे। ऐसा म्यूज़िक न सुनिए जो बस आए और चला जाए। तो वो गज़लों में है, क्योंकि इसके अल्फाज, कविता सब इतनी खूबसूरत होती है कि गज़ल बरसों तक जिंदा रहती है। आज भी हम सुन रहे हैं, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, जी सर। चौदवी का चांद हो या आफ्ताब हो। ये इसलिए सुन रहे हैं कि ये ज़िंदगी भर हमारे साथ रहने वाला है। जब तक मोहब्बत जिंदा है तब तक गज़ल जिंदा है। क्या बात है, सही बात है। शुक्रिया। शुक्रिया सर। शुक्रिया शुक्रिया। सर को जाने दो। शारिक ब्लर अच्छा लगा। थैंक यू सर। चलिए आप मुझे कहिए। एक सिप ले लेते हाँ हाँ बिल्कुल, चलो रोल है सबका। हैं। एक सेकंड है। हाँ हाँ जी। चलो रोल है। रोल है। बहुत बहुत मुबारक सर। धन्यवाद। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 21 ईयर जी। खाना खजाना। इस मौके पर आप हमारे साथ प्रेजेंट हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीच भी दिया आपने। कुछ कहना जी। चाहेंगे इस मौके पर, जिस तरह से हमने 20 ईयर कंप्लीट किया, नाउ हम 21 ईयर जी जी जी। ये मैं समझता हूँ कि किसी भी फेस्टिवल के लिए एक बहुत जिसको कहें कि एक गोल्डन मोमेंट है कि हमने जब शुरू किया था तो हमें ये मालूम नहीं था कि ये ख़जाना जो है वो इतना लंबा जाएगा। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपका इरादा नेक हो, जब आपका मकसद नेक हो, तो कभी आपको कोई किसी भी काम में रुकावट नहीं आती। और हमारा इरादा जो है वो बहुत नेक है। कैंसर पेशेंट्स और थैलेसीमिक बच्चों के लिए हम जो काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें लोगों का प्यार मिलता रहा हमेशा। हमें मीडिया का सपोर्ट मिला, हमें ओबरॉय होटल, यूनियन बैंक, सब लोगों का सब लोगों का पूरा इतना सपोर्ट मिला है कि 20 साल कैसे निकल गए ये हमें पता नहीं चला। और आज 21वें साल में भी ऐसा लग रहा है, जैसे आज का ये उत्साह आप देख रहे हैं सारा, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहला साल है। तो मैं समझता हूँ कि यही ख़जाना की स्ट्रेंथ है, यही ताकत है ख़जाना की, कि लोगों को ख़जाना एक मैग्नेट की तरह खींचता है। और यही वजह है कि हम आज 21वें साल में आज इस तरह से हमें यहाँ ख़जाना करने का मौका मिला है फिर से। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये चल रहा है तो ये चलता ही रहेगा बस। सर अनुज जी से बात की जी। पहले तो उन्होंने बोला कि मतलब जैसे जैसे मतलब भूपेंद्र जी नहीं रहे और भी 1-2 लोग नहीं रहे हैं, तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई यंगर जनरेशन में कोई गज़ल सिंगर होंगे? बहुत सारे आज आपने देखे होंगे कि बहुत सारे यंग लेडीज़ और बहुत सारे सिंगर्स यहाँ मौजूद हैं। तो आपको मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने सारे यंगस्टर्स हैं कि जो जिनके पास टैलेंट है और जिनके पास हौसला है, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ख़जाना का जो कारवां है उसको पूरा आगे तक ले जाने की उनमें हिम्मत भी है और उनमें टैलेंट भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक काम शुरू हुआ है वो रुकने वाला नहीं है। सर मैडम का एक सवाल है सर।
जी सर, पंकज उदास सर, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू थैंक एक्चुअली। यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। इट्स वेरी प्लेजर मीटिंग विद यू। सो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके काफ़ी गाने हैं, काफ़ी मशहूर गाने हैं, जिनमें से एक गाना है जिसका नाम है चिट्ठी आई है जी। जो आज तक लोगों की ज़बान पर काफ़ी गुनगुनाता है और काफ़ी अपनी अलग उसकी तासीर है इस गाने की। तो आप ज़रा कुछ 2 लाइन हमारे लिए ज़रा आज भी गा दीजिए तो। बहुत वैसे नॉइज़ है लेकिन मैं सुना देता हूँ। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतन को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। शुक्रिया सर, क्या बात है। भूपेंद्र जी के लिए कुछ ट्रिब्यूट में करना। जी बिल्कुल, जैसे मैंने मेरी जो मैंने आज बात की, मैंने लोग मीडिया से सबसे बात की, उसमें मैंने कहा कि ये हमें इस बात का दुख है और इस बात से हम लोग थोड़े, हमारा स्पिरिट डाउन हो जाता है, लेकिन ये है कि ये ऐसे कलाकार सब, जैसे लता जी, मैंने कहा कि लता जी को हम लोग ये साल खजाना लता जी को समर्पित कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं। तो लता जी ने फिल्मों के ज़रिए गज़लों को इतना पॉपुलर किया। उसी तरह से हमारे भूपेंद्र जी को मैं बहुत प्यार से बड़े भैया कहता था, और वो सही में हमारे बड़े भाई थे। वो 21 साल से हमसे जुड़े हुए थे, वो पहले साल से। और इस साल उनकी कमी महसूस ज़रूर होगी हमें, और हम ईश्वर को यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन उनकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं होगी। भूपी जी हमारे एक बहुत चहीते और हमारे ख़जाना के ख़ास मेंबर थे। सर उनकी वाइफ को भी बुलाने का कुछ प्लान है? मिताली जी को हम लोग ये साल तो मेरे ख्याल से वो शायद नहीं गा पाएगी, लेकिन मिताली जी तो हमारे ख़जाना की मेंबर हैं बिल्कुल, तो हमारी तरफ से तो उनको पूरा सपोर्ट है। सर आज के बाद आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे कि क्या फॉलो करना चाहिए, एंड कुछ इंस्पायर, कुछ मोटिवेशन? नहीं, मोटिवेशन यही है कि देखिए, हम जितने कलाकार आपके सामने आज आप देख रहे हैं खड़े हैं, सब कलाकार जो हैं वो पैशन से ड्रिवन है, सब में पैशन है, सब में एक समर्पण है, और सब में एक संगीत के प्रति चाह और प्यार है, बस वही ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद। अरे तुम बड़े हो गए। अरे ये कितना है यार? आप बताइए आप कैसे? पहचाना, बहुत छोटे लगते थे पहले तो। मैडम 21 ईयर में हम पहुंच गए हैं खाना खजाना सेलिब्रेशन के मौके पर। 20 साल हमने कंप्लीट किया ना, आज 21। तो आप बताइए कि कैसे देखते हैं इस मौके पर? हर साल जब ये सेलिब्रेशन होता है हम देखते हैं कि आप यहाँ पे रहती हैं, आपकी प्रेजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है, तो कैसे देखती हैं आप इस मौके? देखिए, परिवार है हमारा, ये खजाना जो है, पंकज जी हमारे जो बड़े होते हैं ना, वो जो मतलब मुखिया जो होते हैं वो हैं, और अनूप जी, तलत जी, और फिर सुदीप, तो हम सब मतलब ये एक्सटेंडेड फैमिली हमारी। और एक बड़ी सी फैमिली में नहीं होता, तो वो जो भी कुछ भी होगा एक इवेंट, तो उसमें सब भाग लेते हैं। वही फीलिंग है कि सब मिल कर के, सब उम्र के बच्चे हैं और बड़े हैं, और सब गाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, बच्चों से भी हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, और हर बार सीखने को मिलता है। और एक इतने नोबल कॉज के लिए हम मिलते हैं, थैलेसेमिया और कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए। एट द सेम टाइम हम उसमें अपना भी मनोरंजन करते हैं। एज एन आर्टिस्ट हम ग्रो करते हैं, क्योंकि जब एक टारगेट होता है तो हमको तैयारी करनी होती है, और जब वो तैयारी करनी होती है, फिल्म का गाना तो हम स्टूडियो में जाके गा लेते हैं, हिट हो जाता है तो हम स्टेज पे गा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको लाइव ऑडियंस के सामने गाना होता है। और हमें ये ख्याल भी होता है कि वो लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं और डोनेशन देकर आ रहे हैं, तो हमें उन्हें भी एंटरटेन करना है। उसके लिए जो हम तैयारी करते हैं, वहाँ हमारी अपनी तैयारी होती है। और अभी तो हम 2 साल बाद मिल रहे हैं, तो और ज़्यादा हमारी खुशी किसी और ही लेवल पे है कि हम ये मैनेज कर पा रहे हैं, ये कंटिन्यू कर पा रहे हैं।
नहीं तो लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। और ओबरॉय होटल हमारा इतना साथ देता है कि वेन्यू देता है हमें, और हमें ये प्रेस कॉन के लिए जगह मिलती है, हमें खाना मिलता है और सब कुछ। और आप सबकी मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतने स्वीट हैं कि आज तो मतलब यहाँ जगह ही नहीं है, इतने सब आए हैं। कितनी अच्छी बात है। इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि हमारा ये प्रोग्राम कितना इसका इंतज़ार रहता है सबको, कि सब इसको कवर करना चाह रहे हैं। और आप क्योंकि ये बात आगे तक पहुँचाएंगे तो हमारे लिए लोग आएंगे और सुनेंगे। मैम भूपेंद्र जी नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? कितनी ज़्यादा याद आएंगे वो? याद आ रहे हैं, हम तो कल से उन्हीं के गाने सुन रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि इंसान, हमें ऐसा लगता रहा है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमको तो उनकी छाया, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तो भूपी जी के गाने सुन रही हूँ कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। और मेरा बहुत फेवरेट भजन है जो भूपी जी का गाया हुआ है, और रेडियो में मैं सुनती थी, मैं उठती थी तो उनका भजन सुनती थी। मैंने उन्हें बताया था कि मैं कितना रोती रही हूँ। और उसके बाद फिल्मों के इतने अच्छे गाने, इतनी खूबसूरत गज़लें, और उतने ही खूबसूरत इंसान। क्योंकि आर्टिस्ट तो हम सब कला से अच्छे थे, लेकिन इंसान होना मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है अच्छा। और भूपी जी बहुत प्यारे इंसान रहे हैं, तो मैं वो मिस करूँगी उनकी विजडम, उनकी इंट्रैक्शन जो हमारी होती थी उनके साथ। मैम लास्टली गाने की बात की जाए तो कौन कौन से गाने आप गाने वाली हैं? कुछ ब्रीफ? अभी मैंने बिल्कुल तय नहीं किया। मैं कल सिडनी से वापस आई हूँ तो अभी मैंने तय नहीं किया। मैं आराम से सोचूंगी, लेकिन मैं शायद लता जी को जो हम मेडली ट्रिब्यूट करूँगी उसमें मैं मदन मोहन जी का एक नगमा ज़रूर गाऊँगी। मैम अगर 2 लाइन अगर आप गा सकें। अच्छा, मैं कोई और गाती हूँ जो मुझे पसंद है। माई रे मैं कैसे कहूँ पी अपने जिया की माई रे। थैंक यू।